Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे क्यों कर ऐसे दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, क्या बात है? सेटिंग चेंज हुई है। So now start with nasal cavity. So when we discuss the skull, we have seen that there are different bones which are forming the bony nasal cavity. But here we are talking about the nasal cavity in the sense of in fresh condition, like in live animal. If we talk about the nasal cavity in case of live animal, then what are the structures which complete the nasal cavity walls? So one by one we will discuss. So nasal cavity is the first part of respiratory system. It is elongated cavity and closed by all facial bones. Means almost all facial bones are involved in this, except hyoid and mandible. So nasal cavity is a single cavity actually, but it is divided by nasal septum into two halves. ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि there are two nasal cavities. The nasal cavity is a single cavity and it is divided by septum into two halves. And the septum is formed by most of the part by the cartilage. And which type of cartilage? Hyaline cartilage. ठीक है ना? तो first the nasal septum is formed by the cartilage, then perpendicular part of ethmoid and vomer bone. ठीक है ना? So the two bones will contribute, vomer and ethmoid, and rest part of septum is formed by the hyaline cartilage. अब ठीक है? ठीक है, अब ठीक दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है. Then the nasal cavity communicate with the exterior by anterior nares. ठीक है ना? Anterior nares also called nostrils, right? And the posteriorly the nasal cavity is communicated with the nasopharynx. ठीक है ना? And that opening of the nasal cavity, because nasal cavity is divided into two halves, that's why there must be two opening to communicate with the nasopharynx. And these openings into the nasopharynx are called posterior nares or choanae. ये लास्ट टाइम भी हमने टर्म पढ़ा था, choanae, CHOANAE. बहुत पूछा जाता है ये टर्म क्योंकि थोड़ा सा अलग है. पोस्टीरियर नेयर्स तो इजी है, ऐसे ही समझ में आ जाता है. पोस्टीरियर नेयर्स मींस ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी टुवर्ड्स नेजोफेरिंक्स. बट कोएने टर्म थोड़ा सा अलग है, इसलिए यूजुअली पूछ लेते हैं. ठीक है, so anterior opening, anterior nares, posterior opening, posterior nares, that is also termed as choanae. Now we talk about the structure of the nasal cavity. So how the roof, floor, lateral wall, anterior opening and posterior opening are formed. So the roof will be formed by the nasal bone and frontal bone. Some contribution of frontal also and whole nasal bone. ठीक है ना? The nasal bone and frontal bone forming the roof of nasal cavity. Then floor of nasal cavity. Floor of nasal cavity का मतलब क्या है? Hard palate. जैसे हमने hard palate पढ़ा था ना? Hard palate is forming the roof of mouth cavity and floor of nasal cavity. So premaxilla, maxilla and palatine process of maxilla, premaxilla and palatine bone. Ramesh, class चल रही है. The floor of nasal cavity is formed by the premaxilla, maxilla
in maxilla, palatine process of maxilla and palatine bone. ठीक है ना? Now the lateral walls will be formed by the maxilla, palatine, pterygoid, nasal process of premaxilla. तो एक बार मैं आप लोग को फिर से दिखाऊं कि स्कल में कि आप चीजें थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना पड़ेगा कि स्कल में हम कैसे पढ़ते थे. स्कल में हमने जो है डिस्कस किया था उस समय. तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ स्कल में. ये देखिए स्कल दिख रहा है सभी को, है ना? You see this yellow part is nasal bone and here is the extension of frontal over here. Means the roof, क्योंकि ये जो nasal bone के इधर तक frontal का extension है, that is why we say that the roof of nasal cavity is formed by the nasal bone as well as part of frontal bone. If we talk about the lateral wall, तो lateral wall में लिखा हुआ है नाम maxilla. ये bone कौन सा है? maxilla bone है ना. Lateral wall is formed by the maxilla. Anshi Shukla, you have joined now. Anshi, यस मैम. क्या बात है, अभी ज्वाइन कर रहे हो आप? मैम डेटा प्रॉब्लम हो रहा है. क्या हो गया? डेटा? यस मैम, नेटवर्क. अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है. तो ये आप देखेंगे लेटरल वॉल. लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, अभी मैं हमने पढ़ा लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी इज फॉर्म बाय दिस बोन हियर. दिस वन इज मैक्सिला. हियर ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये पार्ट, दिस पार्ट इज द पार्ट ऑफ प्री मैक्सिला. ठीक है ना? प्री मैक्सिला हैज two processes, nasal processes and palatine processes. So these are called nasal process of premaxilla. So lateral wall is also formed by the nasal process of premaxilla. Here by the maxilla. Some part of this is what? Malar, zygomatic bone. ठीक है? और टेरिगोइड बोन आ जाएगी थोड़ा सा इधर से, क्योंकि अपन यहाँ बात करते हैं ना टेरिगोइड का. सो टेरिगोइड बोन की भी बात आएगी. ठीक है? टेरिगोइड इसमें दिखती नहीं है, याद करो यहाँ दिखाया था. वैसे भी स्कल कॉम्प्लिकेटेड है काफी, तो हम फिर से स्कल में नहीं घुसेंगे, थोड़ा सा आप समझ लीजिए. देखो अभी अभी आपको जो स्कल दिख रहा है, दिस पार्ट ऑफ एरिया ऑफ नेजल कैविटी इज डिवॉइड ऑफ बोन. सो दिस पार्ट विल बी फिल्ड अप बाय द कार्टिलेज. ठीक है ना? तो जो हम बोलते हैं नेजल टिप ऑफ नोज इज फॉर्म बाय द कार्टिलेज, पढ़ते हैं ना? Here also there is contribution of cartilage to make the nasal cavity completed. So we see how the cartilage contribute in formation of nasal cavity. So here we see the lateral wall is formed by the maxilla, some part of zygoid and nasal process of premaxilla, bounded by premaxilla and nasal bone, and posterior opening by the sphenoid, palatine and pterygoid bone. ठीक है? So this is the formation of nasal cavity. Then if we talk about the nostril मतलब anterior nares की बात चल रही है. Anterior nares means opening of nasal cavity towards exterior. So nostril are comma shaped oblique openings present on either side of muzzle. मैंने muzzle actually it is the area which include the space between the two nostril as well as upper lip. ठीक है? तो muzzle में दोनों चीजें included हैं, the area between the two nostril as well as upper lip. On either side of muzzle there are two comma shaped openings, और opening कैसी है? oblique है. ठीक है ना? two comma shaped openings nostril. ठीक है ना? close together below
देन above, ठीक है ना. अगर हम देखें नॉस्ट्रिल्स जो है मीडियल LA एंड लेटरल LA, दे आर बाउंड विद, दे हैव द 2 LA. ठीक, LA किस टाइप से, देखो पहले डायग्राम में समझाती हूँ मैं आप लोगों को. ये देखो डायग्राम, कर्सर दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना कर्सर, ठीक है. अब देखो, हाँ अभी हम जब पढ़ रहे देखा था हमने स्कल देखा था, तो जब हमने स्कल देखा था तो मतलब अभी कंप्रेस टाइप का हो गया, इसको इससे कंपेयर करना है, ठीक है ना. बाजू में मैंने स्कल का भी डायग्राम लगाया हुआ है. ये इसमें देखो ये नेजल बोन है ना, और इतना पार्ट, दिस पार्ट ऑफ बोन, यहाँ कोई बोन नहीं है, ये जगह खाली है. तो कैसे ये जगह कंप्लीट होगी, दिस विल बी फिल्ड अप बाय दिस कार्टिलेज. एक तो ये एक्सटेंशन होगा लाइक नेजल बोन, extension of nasal bone. So there are two cartilage actually. पहले याद रखना है, there are two cartilage. One is alar cartilage, another is parietal cartilage. There are two cartilage which fill the gap. क्या होगी, filling the gap dorsally as well as laterally. मतलब ऊपर से ये वाला पोर्शन भी parietal cartilage ने fill up किया हुआ है, और उसके बाद जो इधर से गैप होगा, दोनों तरफ से गैप होगा, that is also filled up by the parietal cartilage. The alar cartilage which support the nostril है, वो किसको सपोर्ट करेंगी, anterior nares और nostril को सपोर्ट करेगा alar cartilage. ठीक है, तो parietal cartilage is comprised of two parts. One is dorsolateral part and another is ventrolateral part. So this one is the dorsolateral cartilage, and here it is the ventrolateral part of parietal cartilage. ये आप देख रहे हो, एक हाफ देखना, क्योंकि पेयर्ड कार्टिलेजेस हैं. parietal cartilage and alar cartilage, they are paired cartilage, they are paired. ठीक है, पेयर्ड है कि सिंगल है, बोन, द पेयर्ड बोन और सिंगल बोन. मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, नेजल बोन सिंगल बोन है कि पेयर्ड बोन है? यस, इट इज पेयर्ड, पेयर्ड बोन ही है. ठीक है ना, दो हाफ्स उसके क्लियर कट दिखाई देते हैं. बाय दिस मीडियन टू हाफ्स ऑफ वॉर्मर mandible and hyoid, single bone, rest all are paired. confuse कोई, facial bones, vomer, mandible and hyoid, these three bones are single, rest are paired bones, right? अब यहाँ आप देखो, इसमें देखिए ये थोड़ा सा आपको बोर्ड पे भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ. सामने डायग्राम भी है और मैं आपको बोर्ड में भी एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ. ठीक है, so alar cartilage, the shape of alar cartilage is like this. So this is called lamina of alar cartilage. This part is called lamina. This part is called cornu, and this part is called transverse bar. This part is called transverse bar. So there are three parts of alar cartilage. The portion which is continuous with the dorsolateral part of parietal. इसके पीछे कौन सी है, dorsolateral parietal cartilage है. And here is one side of alar cartilage, and here is another side of alar cartilage. ठीक है ना, so it is like this. ये ऐसे है स्ट्रक्चर. ठीक है, ये alar cartilage, these are the two paired alar cartilage. Here is the dorsolateral parietal cartilage which is continuous to the nasal bone. Nasal bone, the cranial continuation kind of. And the alar cartilage is comprised of three parts: lamina, cornu, and transverse bar.
The structure of this cornu and transverse bar resemble to the anchor. Anchor समझते हो ना, जो जहाज को रोकने के लिए जो फंसाए जाते हैं, या आपने देखा होगा पिक्चर में देखा होगा, वो ऊपर चढ़ने के लिए वो यूज करते हैं, है ना, हुक टाइप स्ट्रक्चर. So that is called anchor. So this shape of cornu and transverse bar of alar cartilage resemble to the anchor, right? अब ये बना क्या रहा है, बेसिकली ये क्या कर रहा है alar cartilage. मैंने अभी बताया आपको, this dorsolateral part and ventrolateral part filling the gap dorsally as well as laterally, but this alar cartilage is supporting the nostrils. ठीक है ना, it is supporting the nostril को support कर रहा है this alar cartilage. ठीक है, कैसे देखो, अभी जो है ये, अब आप शेप इमेजिन करना जो मैंने डायग्राम बनाया, ये दिस इज द लेमिना ऑफ alar cartilage, दिस इज द cornu ऑफ alar cartilage एंड दिस इज द ट्रांसवर्स बार ऑफ alar cartilage. ठीक है ना, एंड दिस होल इज nostril. ये पूरा क्या है, दिस इज one nostril which is comprised of 2 ala. Each nostril is comprised of 2 ala, medial ala and lateral ala. There are 2 ala, ala और wings. ठीक है ना, ala को ही wings बोला जाता है. ठीक है, so there are 2 ala, medial ala and lateral ala. So medial ala is this one and lateral ala is this one. So we can say this cornu and transverse bar is supporting the lateral ala of nostril. Am I right? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है. शांत रहेंगे तो फिर कोई इसका निकलेगा नहीं, है ना, कोई मतलब नहीं निकलेगा. अगर मैं पढ़ा रही हूँ कोई चीज तो ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो हम रिपीट भी करेंगे ना. हाँ बोलो, समझ में आ रहा है ना? मैं एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा. फिर से रिपीट करें, ठीक है. ये देखो, अभी मैंने बताया द नेजल कैविटी, वी आर डिस्कसिंग द फॉर्मेशन ऑफ नेजल कैविटी. ठीक है ना, फिर हमने नेयर्स के बारे में डिस्कशन किया. ठीक, एंटीरियर नेयर्स, पोस्टीरियर नेयर्स. जब हम नेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, ड्यूरिंग दिस डिस्कशन वी आल्सो डिस्कस दैट देयर आर 2 cartilages. देयर one is the parietal cartilage, another one is the alar cartilage. So parietal cartilage actually, अगर हम ये फ्रेश, ये स्कल है, ये ड्राइड स्कल है ये, और ये क्या है, ये लाइव एनिमल का हेड है. ठीक है ना, एक लाइव एनिमल खड़ा है जिसका हेड है और ये ड्राइड स्कल है. तो जब स्कल में देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या गैप है, दिस पार्ट हैज द गैप. लेकिन यही जब हम फ्रेश एनिमल को देखते हैं तब कोई हमें गैप थोड़ा दिखाई देता है ना. तो हम तो सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर व्हिच आर फिलिंग दिस गैप. सो आई टोल्ड यू parietal cartilage is there. So continuing to the nasal bone, one cartilage, मतलब एक इधर से और एक इधर से, दोनों तरफ से, क्योंकि पेयर्ड है ना. Parietal cartilage is also paired. So one part of parietal cartilage is dorsolateral and another part is ventrolateral. So this one is the dorsolateral cartilage or of parietal cartilage, and this one is the ventrolateral part of parietal cartilage, जो इधर से इधर दिख रहा है, ये ठीक है ना. तो ये तो हुआ parietal cartilage के बारे में. Then I told you the nostrils are supported by the alar cartilage. And the alar cartilage is comprised of 3 parts. यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट किसको क्या बोला है, लेमिना बोला है. This one is the lamina of alar cartilage. ये this one is the cornu, turned है ना, curved है, that's why it is cornu. And this hook, this structure is the transverse bar. It is called transverse bar of alar cartilage. And this structure resemble to the anchor. ठीक है ना, this structure resemble to the anchor. I think अब समझ में आया होगा. हाँ बोलो. मैम which is transverse bar? चालू है ना, वीडियो चालू है बच्चों? Yes ma'am. Yes, ma'am. हाँ दिख रहा होगा ना. हाँ ठीक. ये जो मैं डायग्राम में बनाया ना, ये स्ट्रक्चर बनाया,
ये हुक जैसा जिससे फंसता है, ये स्ट्रक्चर, दिस इज द ट्रांसवर्स बार। ये दिस स्ट्रक्चर ट्रांसवर्स बार, यहाँ से लेके और ये पोर्शन क्या है, कॉर्नू, ये पोर्शन which is in continuation with the dorsolateral parietal cartilage is the lamina। समझ में आया? बताओ। एलए बता दीजिए एक बार। एलए बताते हैं, ठीक है ना। ये देखो मैंने अभी बताया, देखो हाँ, अपने अपने नोस्ट्रल से कंपैरिजन करो, अब एनिमल को छोड़ो, अपना देखो। अगर हम अपना देखें तो वी हैव टू नोस्ट्रल्स, है ना, दो नोस्ट्रल से। हर नोस्ट्रल में एक बाहर वाला है, ये वाला है, और एक अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ तो मिड लाइन वाला हो गया ना, वो एक इस तरफ और एक इस तरफ। सो दिस विल बी कॉल्ड एज मीडियल एलए। इसको क्या बोलेंगे, मीडियल एलए बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, जो बाहर वाला है, इधर वाला है, इसको क्या बोलेंगे, लेटरल एलए बोलेंगे। ईच नोस्ट्रल इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 एलए और विंग्स, उसी को विंग्स बोलते हैं, उसी को ही एलए बोलते हैं, ठीक है। इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 एलए, लेटरल एलए एंड मीडियल एलए, राइट। और फिर दोनों कहाँ ज्वाइन करेंगे, दिस इज द अपर कमीसर एंड दिस इज द लोअर कमीसर ऑफ 2 एलए। ये डॉर्सल कमीसर होगा, कमीसर मतलब जहां जुड़ते हैं, ठीक, जहां पर वो जाके जुड़ेंगे। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला और ये हो जाएगा नीचे वाला कमीसर। और ये कैसा है, कॉमा शेप बताया था ना, देयर आर 2 कॉमा शेप ओपनिंग्स ऑफ नेजल कैविटी कॉल्ड एक्सटर्नल लेयर्स, है ना। ये देखो अगर पूरे को हम देखेंगे तो कैसा है, ये पूरा स्ट्रक्चर कॉमा शेप है। तो ये ऊपर इनकी ये medial LA, sorry, this one is the medial LA, this one is the lateral LA. They are joining superiorly as well as inferiorly, right? अब हम देखते हैं, देखो यहाँ लिखा ना, they are close together below than above and bounded by thick LA, that is also called wings, ठीक है ना। Then fusion of LA form commissure, जिसको मैंने अभी बताया आपको, एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया ना, कि the 2 LA meet at the point that is called commissure, that is superior commissure और inferior commissure, ठीक है ना। superior को dorsal और ventral भी बोल सकते हैं। Then the nostrils are supported by alar and parietal cartilage, अभी चर्चा हुई है बारे में। तो यही सारा डिस्कशन जो हमने अभी डायग्राम में किया। तो ये तो चर्चा किसकी हुई थी, नॉस्ट्रल की चर्चा हुई, about the nostrils, ठीक है, and cartilages। अब हम आते हैं the structures present in the nasal cavity, ठीक है। nasal cavity के अंदर क्या है, अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, राइट, फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना। डॉर्सल वॉल हमने पढ़ा, लेटरल वॉल पढ़ा, हमने फ्लोर पढ़ा, फिर हमने एंटीरियर नेयर्स पढ़ा, और पोस्टीरियर वॉल बताया था कोई ने, जब लास्ट टाइम पढ़ रहे थे तब भी बताया था, इट इज बाउंडेड बाय द टेरिगोइड, ठीक है ना। यहाँ ये बना हुआ है, द पोस्टीरियर ओपनिंग इज बाउंडेड बाय स्फिनोइड, पैलेटाइन एंड टेरिगोइड बोन, ठीक है ना। सो एंड दैट इज कॉल्ड कोइने, ठीक है। नाउ टर्बिनेट की बात पहले भी हुई है, जब मैंने आपको फेशियल बोन्स काउंट करके बताई थी। पहले हम डायग्राम से समझेंगे सारी चीजें, फिर इसके बाद हम इसको मैं बताती हूँ, जो लिखा हुआ है मैं पढ़ाती हूँ, पहले हम डायग्राम से समझेंगे सारा। ये दिस यू सी दिस डायग्राम, विच टाइप ऑफ सेक्शन इज दिस, क्या सेक्शन बोलेंगे इसको। हाँ बिल्कुल सही, नीचे लिखा हुआ है सेजाइटल सेक्शन ऑफ हेड, ठीक है। सो क्यों सेजाइटल बोला है इसको, लॉन्गिट्यूडनल क्यों नहीं बोला। बताओ कब बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। मैम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब भी हम काटते हैं एकदम मिड लाइन से नहीं कटा अगर, तो हम उसको सेजाइटल ही बोलेंगे। इफ यू आर श्योर दैट यस नेजल सेप्टम हैज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, then you can say yes it is longitudinal section. But what happened when we cut the skull from the midline, in many of the cases nasal septum कुछ एक का कुछ पार्ट जो है दूसरी तरफ ज्यादा चला जाता है, एक तरफ कम आ जाता है, ठीक है।
तो दैट्स व्हाई वी से द सजाइटल सेक्शन ऑफ, इतने एरिया पे फोकस करना है, इतने एरिया पे, ठीक है ना, इस एरिया पे फोकस करना है, पूरा अभी छोड़ दो, सारा स्कल छोड़ देना है, केवल इतने एरिया पे फोकस करना है। अब इसमें हमने नेजल सेप्टम को हटाया हुआ है, वी हैव रिमूव्ड द नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम को हटा दिया है। जब हटा दिया है नेजल सेप्टम को, तो फिर हम क्या देख रहे हैं नेजल कैविटी के अंदर, इट इज नॉट अ होलो स्पेस, ये खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स और हैं। क्या है वो स्ट्रक्चर्स? देयर आर टर्बिनेट बोन्स, देयर आर प्रेजेंस ऑफ टर्बिनेट बोन्स। जो ये ऊपर वाला एक लाइन दिख रहा है, दिस लाइन, ये दिस वन लाइन इज डॉर्सल टर्बिनेट। याद करो जब टर्बिनेट बोन्स मैंने मतलब लिस्ट किया था, तब भी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। So here this one is the dorsal turbinate, this one is the ventral turbinate, जो नीचे वाला है, ठीक है, this one is the ventral turbinate, this one is the dorsal turbinate। और कितनी टर्मिनेट बोन्स बताई थी मैंने, 2 की 3? 3 थी। 3 बताई थी कि 2 बताई थी? 2 बताई थी मैम। 2 बताई थी ना, इसमें 3 लिखी है क्या? 2 ही होती हैं टर्बिनेट बोन्स। अब फिर से दोबारा हम फिर वहीं पहुंच रहे, ठीक है। एक्चुअली दिस पार्ट, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये किसका पार्ट है? इथमॉइड बोन का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ इथमॉइड बोन, ठीक है। इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट टर्बिनेट बोन में काउंट नहीं किया जाता है। There are only 2 turbinate bones, that is dorsal turbinate and ventral turbinate. But this part of ethmoid bone, its largest anterior most turbinate is called middle turbinate because of its position. ठीक है ना, because of its position it is called as middle turbinate because it is extending in between the dorsal and ventral. But actually it is ethmoid bone, it is the part of ethmoid bone. तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इथमॉइड बोन सोच के लगता है कि यार इथमॉइड तो कुछ अलग ही थी, ये क्या आ गया। इथमॉइड का जो मतलब बिहेवियर है या इथमॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। यहाँ के इधर नेजल कैविटी में जो इथमॉइड का एक्सटेंशन है, ठीक है, तो ये इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। अच्छा ये बताओ इथमॉइड सिंगल बोन है कि पेयर्ड बोन है? Ethmoid bone is a single bone or paired bone? Paired. सिंगल। I'm single. फेशियल। हाँ बोलो बोलो, कौन कौन सी सिंगल है। अच्छा भी ठीक है ना, ये जैसे बताया था लास्ट टाइम, दिख रहा है ना बच्चों? क्यों दिख रहा है कैमरे में? यस मैम। यस मैम। दिख रहा है ना, ये येलो वाला पार्ट था ना, ये ऑक्सीपिटल हमने बोला था जो कि सिंगल बोन थी। उसके बाद ये वाला पोर्शन आ गया था स्फिनोइड का पोर्शन, दैट इज आल्सो सिंगल बोन। फिर उसके बाद मैंने कहा था इथमॉइड आ जाएगा, लेकिन इथमॉइड हमें यहाँ से नहीं दिखेगा, बताया था है ना। इथमॉइड बोन हमको ऐसे नहीं दिखेगी, वो कैसे दिखेगी? ये दिखेगी, इसीलिए बता रहे, ठीक है ना। इथमॉइड बोन इज अ सिंगल बोन बट इट इज हैज पेयर्ड लेटरल मासेस। Ethmoid bone has paired lateral masses. Paired lateral masses क्या? यही जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं? लेटरल मासेस बोला जाता है। जो इस मतलब that will be present on right half as well as in left half of nasal cavity. दोनों तरफ मिलेगा, इस तरफ भी मिलेगा और उस तरफ भी मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, अगर इथमॉइड बोन पढ़ना आज है ना, बुक में लिखा हुआ है सब कुछ, पढ़ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। So actually the lateral masses of ethmoid bone is called ethmoturbinate. It is called ethmoturbinate, ठीक है। और पिछली बार भी मैंने डायग्राम बना के समझाया था, देखो इस बार फिर डायग्राम बनाती हूँ मैं। दिख रहा है ना बच्चों, बोर्ड दिख रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है सभी को? बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ये क्या है? एक क्रिस्टागेलाई है। क्रिस्टागेलाई क्या होता है? ड्यूरामेटर जहां से अटैच था, हाफ सेरेब्राई, ठीक है। तो एक्चुअली दिस यहाँ क्या है? इसके पीछे
इसके पीछे क्रेनियल कैविटी है। देखो डायग्राम में भी देखो और यहाँ मैं ड्राइंग बना रही हूँ उसमें भी देखो, दोनों जगह देखो आप, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आप, हियर इज द क्रेनियल कैविटी, हियर इज द, पीछे तरफ क्या है इसके, क्रेनियल कैविटी है ये, और ये क्या है, नेजल कैविटी। ये जो पार्टीशनिंग है बिटवीन नेजल कैविटी एंड क्रेनियल कैविटी, हियर इज दिस स्ट्रक्चर, ये क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टा गैलाई। क्रिस्टा गैलाई किसका पार्ट है, इथमोइड बोन का ही पार्ट है, क्रिस्टा गैलाई, ठीक है ना। क्रिस्टा गैलाई इथमोइड बोन का ही पार्ट है, ठीक, परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ इथमोइड बोन। या फ्रॉम हियर देयर विल बी अटैचमेंट ऑफ दिस डॉर्सल टर्मिनेट। ये क्या है, ये मैंने डायग्राम में ये ऊपर बनाया है, ये क्या बनाया मैंने, डॉर्सल टर्मिनेट या डॉर्सल नेजल कॉन्का। टर्मिनेट बोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज नेजल कॉन्का, कॉन्कल बोन, ठीक है। तो ऊपर की तरफ क्या होगा, डॉर्सल टर्मिनेट होगा। फिर वेंट्रल टर्मिनेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये स्टार्ट होगा ऐसे, ये ऐसे जाएगा ऊपर, मिडिल पोर्शन विल बी ब्रॉड एंड एंटीरियर पोर्शन विल बी नैरो, हियर आल्सो इट विल बी नैरो, द मिडिल पोर्शन ऑफ वेंट्रल नेजल कॉन्का इज ब्रॉड। फिर from the crista gallei there are V shape like ऐसे leaf will be present, ऐसी लीव्स होंगी, ये सबसे बड़ी लीफ है, फिर उससे छोटी लीफ, फिर उससे छोटी लीफ, फिर उससे छोटी लीफ, they are originating from the crista gallei. So basically these all are called ichthyoterminates. What are these? These are ichthyoterminates. क्यों बोला है ichthyoterminates? Terminates इसलिए बोला है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किन्हीं बोन से रिसेंबल कर रहा है, just papery scroll like, and these are the part of ethmoid bone, that's why called ichthyoterminates, right? So the anterior most ichthyoterminate, this one ichthyoterminate is largest one, सबसे बड़ा है, and it is called middle terminate. It is called middle terminate, जो सबसे आगे वाला सबसे बड़ा है and projecting in between the dorsal and ventral, that is called middle terminate bone. So क्या अब आप समझे, middle terminate is not a separate bone, basically it is the ethmoid bone, लेकिन इसको middle terminate किसको बोल दिया गया है, इतने को बोल दिया है, केवल इतने पार्ट को। तो ये सबसे आगे वाला फोल्ड है, this fold is termed as middle terminate, right? You understand or not? एथमो टर्मिनेट और मिडिल टर्मिनेट में फिर डिफरेंस, इथमो टर्मिनेट और मिडिल टर्मिनेट में क्या अंतर है ना। इथमो टर्मिनेट, सारे इथमो टर्मिनेट हैं, ये सारे क्या है, ये इथमो टर्मिनेट बोन्स हैं। यस मैम। Anterior most largest इथमो टर्मिनेट is known as middle terminate. आए बात समझ में? यस मैम। समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे इथमो टर्मिनेट है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये वेंट्रल टर्मिनेट बोन है, ये डॉर्सल टर्मिनेट बोन है, अब ये मिडिल टर्मिनेट बोन है। ठीक, इतना समझ में आया? अब एक और टर्म यूज हुआ है, मियाटस। मियाटस टर्म यूज हुआ है, ठीक है ना। मियाटस टर्म क्या है, ये क्या है, ये रूफ है नेजल कैविटी का, बोन, ठीक है ना। दिस इज द रूफ एंड यहाँ क्या बनेगा, फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी। ये पोर्शन क्या है, फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, और वो क्या है, रूफ। सो द स्पेस बिटवीन द डॉर्सल टर्मिनेट एंड रूफ ऑफ नेजल कैविटी, देयर इज सम वन स्पेस, दैट स्पेस इज कॉल्ड डॉर्सल नेजल मियाटस। बहुत इजी है, एक बार समझ लो। समझना क्या है, एक कमरा है, दिस इज वन रूम एंड इन दिस रूम एक वॉल से ये चीजें जुड़ी हुई हैं और दूसरे वॉल पे ये सारी जुड़ी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, नेजल सेप्टम आएगा। Here will be nasal septum which separate this half from the another half, and you see that these structures से जुड़े नहीं हैं। कहाँ से जुड़े हुए हैं, उस lateral wall से, lateral wall of nasal cavity से जुड़े हुए हैं। dorsal terminate is attached from there, ventral terminate is attached from there, right? उस तरफ से जुड़े हुए हैं। medial wall या nasal septum से ये structures नहीं जुड़े हुए हैं।
ये डॉर्सल टर्मिनेट, यहाँ जो स्पेस, दिस स्पेस बिटवीन द रूफ एंड द डॉर्सल टर्मिनेट इज टर्म्ड एज डॉर्सल नेजल मियाटस. ठीक, द स्पेस बिटवीन द वेंट्रल नेजल concha and dorsal nasal concha is known as middle meatus और middle nasal meatus. बहुत इजी है. And the space between ventral nasal concha and floor of nasal cavity is called ventral nasal meatus. समझ में आ रहा? Means there जो एक कॉमन स्पेस था वो कॉमन स्पेस एक कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया है. The space between the roof and dorsal concha is termed as dorsal nasal meatus. The space between dorsal and ventral is called middle meatus. The space between the ventral and floor is called ventral nasal meatus. समझ में आया? This middle meatus divided or bifurcated posteriorly into upper portion and lower portion. यहाँ पर ये पूरा का पूरा middle meatus है ना, यहाँ पर ये जो middle nasal concha is encroaching over here. That's why it is bifurcating into upper and lower part. ठीक है? And the upper part of middle meatus, here it is communicated with the frontal sinus, and the lower part of it communicated with the maxillary sinus. ठीक है? समझ में आई मेरी बात कि नहीं समझ में आ रही है? चलो अब डायग्राम से समझाते हैं. जो डायग्राम आपके पास है वो घोष की बुक भी है आप लोग के पास. आप चाहो तो वो खोल भी सकते हो, अपने सामने रख सकते हो. घोष की बुक अगर बाजू में रखे हुए हो तो पेज नंबर 255 खोल लो. पेज नंबर 255 जिनके पास है वो खोल के रख भी सकते हैं. उसमें डायग्राम बना हुआ है, वो थोड़ी कलरफुल डायग्राम है तो हो सकता है आप लोग और समझ में आए. ठीक है, तो देखो now you see in this diagram, here you see this is what dorsal terminate. ये क्या है? ये this one is the ventral terminate. और जो मैंने अभी आपको इथमो terminate बताया था, तो the anterior most one is middle terminate. So meatus is what are the spaces actually. So this one is the dorsal nasal meatus, this one is the middle nasal meatus, and here is the ventral nasal meatus. And the middle meatus posteriorly bifurcated by the encroachment of middle nasal concha. This is the upper division, and here will be the lower division of this one, and communicated with the frontal sinus and maxillary sinus. कुछ समझ में आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं, सब चुप हैं. नहीं समझ में आया क्या बच्चों? आ गया मैम. ठीक है, अब यही चीज अब ये बगल में डायग्राम ड्राई स्कल में रखा हुआ है. ये ड्राइड स्कल है. ठीक है, ये ड्राइड स्कल है और इसमें ड्राइड स्कल में ये क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो. दिस इज द क्रॉस सेक्शन व्यू. ठीक, तो एक्चुअली इसमें ये दिखाया है कि हाउ it is termed as papary, why these are called as papary scroll like bone. उसको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है. देखो ये जो आप पूरा एक इस वाले स्ट्रक्चर पे जैसे फोकस कर रहे हो करोगे आप, तो ये पूरा का पूरा वेंट्रल टर्मिनेट है. ये पूरा क्या है? वेंट्रल टर्मिनेट है, जो कि सजाइटल सेक्शन में ऐसे दिखेगा. लेकिन जब आप क्रॉस सेक्शन इसका लेंगे, देन यू सी दैट देयर इज 1.5 टर्न ऑफ इट, 1.5 टर्न ऑफ इट, एंड हियर इज द 1 कंप्लीट टर्न ऑफ इट. ठीक है, सो दिस इज हाउ दे आर द पेपरी स्क्रॉल लाइक बोन. इसके ऊपर यहाँ पर है डॉर्सल कॉन्का, वो एक पूरा टर्न बनाता है. जैसे आप एक कागज लोगे और कागज को क्या करेंगे? हम रोल कर देंगे. एक कंप्लीट रोल किया कागज को, सिंगल स्क्रॉल होगा. फिर एक कागज को आपने ऐसे घुमाया, 1.5 टर्न लिया. दिस इज द 1.5 टर्न ओवर हियर. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको इतना समझ में आना चाहिए, nasal cavity is not a hollow cavity. It contains terminates bone within it, and this structure is symmetrical. जैसा आप लेफ्ट हाफ में देखेंगे वैसा आप राइट हाफ में देखेंगे. अब दोनों तरफ एक जैसी पिक्चर दिखने वाली है. In both the side of nasal halves, nasal septum has been removed from here. ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ बीच में nasal septum आएगा ना, ठीक, they are connected from here.
फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम बाय द नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम से कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए अभी एक और टर्म आने वाला है, कॉमन नेजल मियाटस, कॉमन नेजल मियाटस। ये मतलब सब इमेजिनरी मियाटस जो बनाए हैं, दे आर द इमेजिनरी लाइक थिंग, इमेजिनरी थिंग, कोई पार्टीशन, परमानेंट पार्टीशन नहीं बनाया हुआ है। बात समझ में आ रही मेरी? Because all the three meatases means dorsal meatus, middle meatus and ventral meatus, they are communicated with each other by common nasal meatus, that is the space between the nasal septum and turbinate bones। मतलब यहाँ पर जो स्पेस बनेगा, ये कवर किससे हो जाएगा? नेजल सेप्टम से कवर हो जाएगा। अब जब ये जुड़े ही नहीं है नेजल सेप्टम से, सो हाउ द पार्टीशन विल बी कंप्लीटेड? अगर ये नेजल सेप्टम से कनेक्टेड होते, जुड़े होते सारे के सारे ये टर्बिनेट बोन्स, तब कंप्लीट पार्टीशन बनता डोर्सल, मिडिल और वेंट्रल का। लेकिन ये पार्टीशन किस तरफ बन रहा है? एक साइड बन रहा है, दूसरी साइड ये सारे के सारे आपस में कम्युनिकेटेड हैं। ठीक है, तो राइट अप पे थोड़ा चलते हैं, अब राइट अप दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक, द मेजर पोर्शन of each half of nasal cavity is occupied by dorsal and ventral turbinate bone. Between both turbinate bone, ethmoturbinate bone is present, which is attached to crista galli. These are the papery scroll-like structures, and they divide the nasal cavity into three nasal meatus, जो अभी बताया था मैंने, है ना? Dorsal nasal meatus, middle nasal meatus, ventral nasal meatus, roof and dorsal turbinate. Middle कहाँ पे है? Between the dorsal and ventral turbinate. ठीक, then ventral between the floor and ventral turbinate. These nasal meatus which branch form the common nasal meatus. ठीक है, so common nasal meatus is the common, comma लिख दिया गलत से, common nasal meatus. It is the longitudinal space on either side of nasal septum. ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पहले बताओ। आ गया मैम। आ गया सभी को समझ में? क्या करें, बहुत सारी मजबूरियां हैं। एक तो आप लोग को समझ में, हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए, कैसे कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ से आपको दिखा भी दिया स्कल हाफ, तो भी बड़ा दिक्कत होने वाला है। चलो मैं आपको स्कल हाफ निकाल के भी दिखाती हूँ, कितने बच गए करती हूँ जो अभी आपने देखा है। ठीक है, अब नेजल कैविटी में वो मेरो नेजल ऑर्गन हमने पढ़ा था, याद करो वो मेरो नेजल ऑर्गन कब पढ़ा था? कब पढ़ा था वो मेरो नेजल ऑर्गन? पढ़ा तो था, याद करो कब पढ़ाया था मैंने? कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी जब वो मेरो नेजल ऑर्गन का डिस्क्रिप्शन आया था? शायद ओल्फैक्टरी लोब के पास, ओल्फैक्टरी बल्ब के पास। और सोचो मैं, हाँ, जब उसी टाइम के आसपास कुछ पढ़ाया था, ऐसे मतलब जब एक्सप्लेन कर रहे। और थोड़ा सोचो, और सोचो थोड़ा सा। मैम जब हार्ट पैलेट पढ़ रहे थे तब उसके एंटीरियर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट पैलेट पढ़ रहे थे, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा पढ़ा था जब वो मेरो नेजल ऑर्गन का नाम आया था? हार्ट पैलेट में जहां ओपनिंग थी, डक्ट की ओपनिंग थी ऑन आइदर साइड ऑफ कैपिला, इंसिसिवा। याद आया? बताओ बच्चों, याद आया कुछ की नहीं? पेपिला इंसिसिवा, ठीक है ना? जब पेपिला इंसिसिवा बताया था तब ऑन आइदर साइड ऑफ, दिस इज, अब ये क्रॉस सेक्शन पहले आप देखो, इस डायग्राम को देखो, दिख रहा है ना डायग्राम? इसमें वोमेरो नेजल ऑर्गन ट्यूब को डिपिक्ट किया है, ठीक है, और थोड़ा बोन के रिप्रेजेंटेशन को भी। अगर व्हेन वी टुक द क्रॉस सेक्शन ऑफ नेजल कैविटी, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ नेजल कैविटी, पूरा नेजल कैविटी का क्रॉस सेक्शन है। Midline have the nasal septum. At the midline there will be the nasal septum. And on either side, on ventral aspect of nasal septum, एकदम नीचे अगर हम देखेंगे, here are the two tubes. ले आओ, तुम्ही को दिखाना है, पकड़ना, मेरे हाथ का इधर हुआ, हाँ इधर आओ, इसको पकड़ो,
मुंडी को पकड़, मुंडी को, ये चमटा हमें दो, मुंडी को हाथ से पकड़ो, ट्रे रखो वहां, ऐसे पकड़ो मुंडी को, इधर लगाओ, एक हाथ इधर, हाँ लंबे में, ऐसे ऐसे आड़े में, हाँ ये चीज इस तरह दिखनी चाहिए, हाँ ऐसे दिखनी चाहिए। तुम पूरे हो तभी इधर दिखेगा, ये कैमरे में दिखाना है। बच्चों दिख रहा है? मैम थोड़ा सा नजदीक लगेगा। थोड़ा और नजदीक लाओ। ये देखो जरा, ये चीज दिख रहा है, देखो ये मैं तो आपको स्पेसिमेन में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये चीज डोर्सल टर्मिनेट जो अभी पढ़ा, देखो ये सजाइटल सेक्शन है किसका, नेजल कैविटी का, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने पकड़ा हुआ है, देखो ये वेंट्रल टर्मिनेट है, दिस वन इज वेंट्रल टर्मिनेट, ये ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स जो मैं आपको बता रही थी ना, मिडिल टर्मिनेट, दिस वन इज द मिडिल टर्मिनेट जो कि बीच में होगा, दिस इज द वेंट्रल टर्मिनेट, दिस इज द मिडिल टर्मिनेट एंड हियर इज द डोर्सल टर्मिनेट। ये जो ऊपर से ये पतला सा है, डोर्सल टर्मिनेट इज थिनर वन, ये पतला होता है, ठीक है। दिस इज डोर्सल टर्मिनेट इज थिनर स्ट्रक्चर, और ये वाला जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज डोर्सल टर्मिनेट, ये वाला, ये जो लाइन गई हुई है, ये लाइन जो आगे जा रही है, दिस इज द डोर्सल टर्मिनेट। ये क्या है, ये मिडिल टर्मिनेट है, और ये क्या है, ये वेंट्रल टर्मिनेट। अगर अपन मियोटेसिस की बात करें, ठीक है ना, तो दिस वन हियर, ये थोड़ा सा नेजल सेप्टम का पार्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसको अंगूठे से दबाओ, ये इसको, हाँ ऐसे, ये जो स्पेस होगा, दिस स्पेस इज नोन एज वेंट्रल नेजल मियोटस, this will be termed as ventral nasal meatus, this will be termed as middle meatus, and this space between the roof and dorsal terminate, this space will be termed as dorsal meatus, ठीक है ना। और this space the middle meatus पूरा आगे तक गया यहाँ तक, and here this middle terminate is bifurcating this space into two part, upper division, this will be the upper part of this space and this will be the lower part। थोड़ी ऊपर करो ना, देखिएगा कैसे, हाँ, this is the lower part and this will be the upper part। ये देखो, ये मैंने हटा दिया, देखो ये हटाया तो ये सारे इथमोटर्मिनेट का पोर्शन हट गया। अब आपको केवल डोर्सल और वेंट्रल दिख रहा है, ये मैंने मिडिल हटा दिए हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात। और ये जो है ये डोर्सल टर्मिनेट है। अब यहाँ पर नेजल सेप्टम नहीं लगा है, नेजल सेप्टम हैज बीन सेपरेटेड आउट, राइट। कुछ तो समझ में आया होगा आई थिंक। यस मैम। तो आई थिंक थोड़ा तो समझ में आया होगा कंसेप्ट। अब नेजल सेप्टम उसमें नहीं था, है ना, दैट द नेजल सेप्टम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दैट। नाउ इफ वी टेक द क्रॉस सेक्शन ऑफ नेजल कैविटी, देन वी कैन सी द vomeronasal ट्यूब्स। vomeronasal ट्यूब देखो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है ना, मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी आप लोग को, ये बहुत डेप्थ में जाने वाला है, ठीक। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ये ट्यूब इतनी पतली होती हैं, जितना ये मेरे हाथ में रिफिल है, जितने मेरे हाथ में ये रिफिल का ये जो एंड है, ये ट्यूब्स इतनी पतली होती हैं। दीज आर नॉट द बिग स्ट्रक्चर, ये तो डायग्राम है इसलिए बिग स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर हम उसको उसमें देखेंगे, लाइव में देखेंगे, तो दी आर ट्यूब्स हैज द अपर्चर लाइक दिस वन, जो पिन की नोक, इसकी नोक है, इतना अपर्चर होता है, ठीक है, ल्यूमेन होगा इसका, ठीक। तो vomeronasal ट्यूब्स कैसा, दे आर प्रेजेंट टू ट्यूब्स on either side of ventral half of nasal septum, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा nasal septum है जो ऊपर से लेके नीचे तक होगा nasal cavity में। तो एकदम जब हम वेंट्रल हाफ में जाएंगे nasal septum के, तो उसके दोनों तरफ, वेंट्रल हाफ दोनों तरफ सपोर्ट किससे मिल रहा है, nasal septum से ही सपोर्ट मिल रहा है। ये देखो ये बोन को बनाया गया है, ये पूरा जो ब्राउन कलर से बनाया गया है वोमर बनाई हुई है, ये देखो ये वोमर को रिप्रेजेंट किया है ब्राउन कलर से, दिस इज द वोमर बोन, ठीक है। तो इससे एनक्लोज है, एंड दिस इज व्हाट ट्यूब, टू ट्यूब्स, जिसका एक एंड ब्लाइंड होगा एंड वन एंड विल ओपन एट द लेवल ऑफ पेपिला इंसिसिवा, ठीक है ना। द ओपन एंड इज एट द लेवल ऑफ पेपिला इंसिसिवा। एक ड्रॉपर की तरह ये ट्यूब्स हैं, दीज आर लाइक ड्रॉपर, मतलब ये
इनका जो एक्सटेंशन होगा पीछे तक जाएंगी अप टू द लेवल ऑफ थर्ड मोलार टूथ। थर्ड मोलार टूथ का मतलब ये नहीं कि नेजल कैविटी में है, ये ऊपर है, लेकिन किस लेवल तक जाएंगी, थर्ड मोलार तक ये ट्यूब पीछे तक जाएंगी, क्योंकि इसकी एक ओपनिंग, वन एंड इज एट द लेवल ऑफ पेपिला इंसिसिवा एंड अनदर एंड विल बी एट द लेवल ऑफ थर्ड मोलार। वो जो थर्ड मोलार वाला जो एंड होगा वो कैसा होगा, जो ड्रॉपर नहीं आया करते थे, याद करो, वो प्लास्टिक वाले जिससे इंक भरा करते थे। आप लोगों के जमाने में, पता नहीं आप लोगों ने देखा भी कि नहीं, वो ट्रांसपेरेंट ड्रॉपर आया करते थे, तो पीछे का जो एंड है वो बल्ब जैसा होता था। So here one end is blind and another end has opening at the level of papilla incisiva। बस इतना समझना पर्याप्त है। तो बेसिकली क्या है, glomerulonasal organ, they are in the form of small tubes, each of which is placed along the ventral border of nasal septum. They open in the oral cavity on either side of papilla incisiva along with those of incisive ducts. Other end of the tubes are blind, right? इतना आपने समझ लिया। फंक्शन मैंने आप लोगों को फ्लेहमन रिफ्लेक्स तब पढ़ाया था जब मैंने ओरल कैविटी पढ़ाया था आपको, तब मैंने बताया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ glomerulonasal organ, यू कैन रिकॉल। ठीक, नाउ द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, सभी को पता है फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, क्योंकि ये बहुत ही जनरल एस्पेक्ट है कि ऑल्फेक्शन तो है ही, वन फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, सेंस ऑफ ऑल्फेक्शन, एंड देन इट इज फॉर conditioning of air. It is responsible for conditioning of air. Conditioning of air मतलब it modify the incoming air before it is transported further down to the respiratory tract. मतलब बहुत ठंड है, आप ऊपर हिमालय की चोटी पे हैं, तो अब उतनी ठंडी एयर आपके लंग्स तक पहुंचेगी, तो क्या होगा? So the one part of one function of nasal cavity is conditioning of air. मतलब यहाँ वो क्या करेगा, जितनी भी terminate scroll like bones हैं, they are causing the maintaining the temperature as well as humidity of that air. ठीक है, air is warmed as it passes over the highly vascularized mucosal surface of concha, humidified by the evaporation from nasal secretion and cleaned as it contact the secretion from mucus glands within the nasal cavity. तीन काम कर रही है, एक तो टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, दूसरा ह्यूमिडिटी को रेगुलेट कर रही है, तीसरा क्लीनिंग का भी काम कर रही है। अगर आप स्मोक में हैं, यू आर रनिंग योर व्हीकल, आप स्कूटी चला रहे हैं, पीछे से आगे से ट्रक चल रहा है, धूल उड़ा रहा है, तो आप में जितना भी म्यूकस ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, दे आर ट्रैपिंग हियर द डस्ट पार्टिकल्स आल्सो, राइट? तो तीन काम यहाँ कर रहे हैं, चौथा काम तो आपको पता ही है, सेंस ऑफ ऑल्फेक्शन। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी। नाउ द स्पीसीज डिफरेंशिएशन, डॉग में तो उतना ज्यादा कोई इतना खास डिफरेंशिएशन नहीं है, हॉर्स में जरूर हम देखेंगे कि in case of horse there are presence of false nostril। false nostril कोई जादू नहीं है, बस इतना समझना है क्या कि there is one pouch also। ठीक है, there are one, अब nostril किसको बोलते हैं? nostril मतलब स्किन वाला पोर्शन nostril कहलाता है, means they have, here is the covering as well as lining of like skin in nostril। ठीक है, in case of horse, blind pouch like structure called diverticulum nasi or false nostril is present। कहां पर प्रेजेंट होगा? अगर आप हॉर्स में अपनी फिंगर इंसर्ट करोगे, ठीक है, फिंगर इंसर्ट करोगे एंड टुवर्ड्स कहां इंसर्ट करोगे? अपर कमिशर की तरफ इंसर्ट करोगे, टुवर्ड्स अपर कमिशर, ऊपर की तरफ ले जाओगे अपनी फिंगर, और टुवर्ड्स लेटरल साइड, ठीक है ना, टुवर्ड्स लेटरल एली, तो ऊपर में आप देखोगे आपकी उंगली जाके वहां पर फंसेगी। ठीक, तो दैट इज द फॉल्स नॉस्ट्रिल इन केस ऑफ हॉर्स। और उसका भी फंक्शन बोला है कि हॉर्स बहुत फास्ट रनिंग एनिमल है, तो बहुत तेज दौड़ता है, तो वहां बहुत ज्यादा एयर की गल्फिंग इज रिक्वायर्ड, सो दैट दिस फॉल्स नॉस्ट्रिल आल्सो वर्क टू मेंटेन द क्वांटिटी ऑफ एयर, मतलब ये इसका रीजन लिखा हुआ है। ठीक, फिर नेजोलेक्राइमल डक्ट की जो ओपनिंग है, इन केस ऑफ डॉग it can be very easily seen at the floor of nasal cavity, जबकि बाकी सब में ऊपर होता है। nasolacrimal duct open dorsally, here in case of horse nasolacrimal duct open at the level of nostril at floor and can be easily seen। ठीक है, ये अंतर है हॉर्स के केस में। and in case of pig, os rostral पढ़ा था ना, os rostral पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ? os rostral
विसरल बोन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी जब बोन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था? बोलो बच्चों, विसरल बोन्स पढ़ी थी ना तब? कितने बच्चे बचे? 49 बच्चे बचे हैं बस। विसरल बोन्स, os opticus, os penis, os cordis, os rostral। याद आ रहा है 4 बोन्स? नहीं याद है? यस मैम। याद आ रहा है? ये 4 बोन के नाम पढ़े होंगे, os penis, os rostral, os opticus, os cordis। os cordis तो मैं नहीं पढ़ाया आप लोग को। os opticus फाउल की आई नहीं पढ़ाई इसलिए os opticus रह गया। In case of foul in the retina of eye, there is presence of os opticus bone। ठीक है ना, बोन ये बोले या ossified cartilage बोलते हैं इसको। ठीक है, os opticus present in eye of fowl, os cordis heart of bovine, os penis penis of dog, and os rostral in case of snout of pig। लिख लीजिएगा कहीं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। तो इन स्नाउट ऑफ पिग बोन इज प्रेजेंट कॉल्ड os rostral। ठीक है, ओके।